So our next test is disintegration test, in which we measure disintegration time of a tablet. Means which tablet take how much time for its disintegration in like stomach, basic medium, acidic medium. Only for oral tablets. Okay. Disintegration test is applicable only for a oral root tablet. Three solvents: water, neutral, zero point 0.1 normal HCl, it's acidic medium. Phosphate buffer solution, base like basic. PBS, also called PBS, phosphate buffer solution. 1000 ml means 1 liter. Mainly temperature of its 37 degree plus minus 2 degree Celsius, means like a normal human body temperature. These are the apparatus like up down. Okay, sieve number 10, 6 tubes of for applying tablets, in which height 2.5 centimeter and downside also 2.5 centimeter. Each tube length 3 inch, up down 28 to 38 cycles per minute. Okay, 3 inch each tube. Next, these are the tubes in which tube we place our tablets. Height 3 inch, in per cycle 28 to 32 up downs. Uh, Sustained release tablet, chewable tablets. For this tablet, not disintegration test. Okay, sustained means it require more time, and chewable it's like easily not going in GIT, disintegrate in mouth, so not required. Disintegration time, in this topic only remember point is a disintegration time. Okay, there is disintegration time and there is a solvent. Water, mainly to water solvent. Dispersible tablet 3 minute. Dispersible tablet 3 minute. Effervescent tablet 5 minutes. Uncoated tablet 15 minute. Film coated tablet 30 minute. Sugar coated 60 minute. Water and acid sugar coated. Soft gelatin capsule 60 minute. Hard gelatin capsule 30 minutes. Water. Buccal tablet 4 hour. Salivary amylase solution. Enteric coated 3 hour. In water rest, zero point 0.1 normal HCl rest, and in PBS solution is disintegrates. Okay, so enteric coated 3 hour normally. uh, मतलब उसमें क्या होता है, वाटर में वो रेस्ट होता है, HCl में भी रेस्ट होता है, बट उसके बाद PBS के थ्रू प्रेजेंस में वो डिसइंटीग्रेट होता है. पॉलीमर एक बार फिर से हम देख लेते हैं. सबसे कम होता है डिसइंटीग्रेशन टाइम डिस्पर्सिबल टैबलेट का 3 minutes. Ibuprofen tablet 5 minute. Uncoated tablet 15 minute. Film coated tablet 30 minute. Sugar coated 60 minute. And a soft gelatin capsule 60. And a hard gelatin 30. Buccal tablet 4 hour. Enteric coated 3 hour. पॉलीमर एंटरिक कोटेड टैबलेट्स के लिए पॉलीमर कौन कौन से होते हैं? आईपी में 3 आवर तक होनी चाहिए उसका टाइम, यूएसपी में भी 3 आवर. सो सबसे पहले क्या होता है, और टैबलेट्स हमारे वो ओरल के थ्रू हम लेते हैं. ओके, वाटरी. उसके बाद स्टमक में क्या होता है, एसिड. सो वहाँ पर वो क्या करता है, 2 घंटे रेस्ट करती है वो टैबलेट. उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है. वहाँ पर पीबीएस के प्रेजेंस में सॉल्यूशन के 1 घंटे बाद वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है. तो मतलब इंटर कोटेड का कितना टाइम हो गया, 3 आवर हो गए. डिसइंटीग्रेशन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ये इंपॉर्टेंट है. डिसइंटीग्रेशन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया. First stage, all 6 tablets disintegrate at a specific time. Pass. If 1 or 2 tablet not disintegrate at a specific time, then go to second stage. मतलब पहले स्टेज में क्या होगा, 6 टैबलेट्स लेंगे, और अगर 6 के 6 भी पास हो गए एक पीरियड, स्पेसिफाइड पीरियड में, तो हमारे टेस्ट पास हो गए. बट नहीं हुए तो हम उनको नेक्स्ट स्टेज में मूव आउट करते हैं. सेकेंड स्टेज में उसमें क्या होगा, 12 न्यू टैबलेट, 12 नए टैबलेट्स लेंगे. ऑल डिसइंटीग्रेट एट अ स्पेसिफिक टाइम, टेस्ट पास. वो भी अगर 12 के 12 एक स्पेसिफिक टाइम में डिसइंटीग्रेट हो जाए तो हमारी टेस्ट पास हो जाएगी. इफ़ 1 और 2 नॉट डिसइंटीग्रेट एट स्पेसिफिक टाइम, देन टेस्ट फेल. अगर फिर से उसमें से 1-2 टैबलेट्स डिसइंटीग्रेट नहीं हुई तो हमारी टेस्ट क्या हो गई, फेल हो गई. ये हो गया हमारे डिसइंटीग्रेशन के बारे में. फर्स्ट स्टेज 6 टैबलेट, सेकेंड स्टेज 12 टैबलेट,
टोटल 18 टैबलेट्स। डिसोल्यूशन टेस्ट और उसको क्या बोलते हैं, इन विट्रो बायो अवेलेबिलिटी टेस्ट। ये एपरेटस है, उसमें गोल्ड की कोटिंग होती है 2.5 mm की। टेम्परेचर कितना होगा, सेम बॉडी टेम्परेचर 37 ±0.5% डिग्री सेल्सियस। उसमें क्या सॉल्यूशन होगा, 0.1 नॉर्मल HCl, वाटर, PBS, ओके, तीनों भी सॉल्यूशन होगी डिसोल्यूशन में। वॉल्यूम कितना होगा, 900 ml। कंप्लीटली फिल नहीं करना है उसे, स्टरर होगा उसको मूव आउट करने में। कैपेसिटी ऑफ वेसल कितनी होती है, 1000 ml की, मतलब 1 लीटर की कैपेसिटी होती है, बट उसमें से हमें 90% ही फिल करना है, मतलब 900 ml का। उसका रोटेशन कितना होता है, 50 to 100 साइकिल पर मिनट, ओके, लाइक रोटेशन पर मिनट्स। डिसोल्यूशन, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है गाइस, डिसोल्यूशन एपरेटस। उसमें टोटल याद रखिए, टोटल 7 एपरेटस होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 एंड टाइप 7। सो टाइप 1 में क्या आता है हमारे, बास्केट टाइप, टाइप 2 पैडल, टाइप 3 रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, 4 से क्या याद रखना, फ्लो मतलब 4F फ्लो थ्रू साइकिल। 5 से, 5th से पैडल, P से ये याद रखना, पैडल ओवर डिस्क, 5th। 6 रोटेटिंग सिलेंडर, एंड 3 और 6 में सिलेंडर ही है, याद रखना। 3 में क्या है, रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर है, और 6 में क्या है, रोटेटिंग सिलेंडर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और लास्ट वाला क्या है, अलग ही है। हम 7 को क्या बोलते हैं, हेप्टा, H फॉर हेप्टा मतलब 7। सो होल्डर से क्या याद रखना है आपको, रेसिप्रोकेटिंग होल्डर, ओके। 7 से क्या याद रखना है, होल्डर। और जो बास्केट और पैडल है वो तो स्टार्टिंग में आएगी, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 बास्केट, टाइप 2 पैडल और रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, फ्लो थ्रू सेल, पैडल ओवर डिस्क, रोटेटिंग सिलेंडर एंड रेसिप्रोकेटिंग होल्डर। इन आईपी में क्या होगा, और जो टाइप 1 और टाइप 2 है वो जस्ट चेंज होंगे। टाइप 1 में आएगा पैडल और टाइप 2 में बास्केट। इन यूएसपी में क्या था, टाइप 1 बास्केट था और टाइप 2 पैडल था। इसमें आईपी में सिर्फ इंटरचेंज होता है। डिसोल्यूशन टेस्ट, तो टैबलेट एपीआई रिलीज, एपीआई मीन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, आईपी डिसोल्यूशन क्वांटिटी एंड यूएसपी क्वांटिटी डिसॉल्व, क्यू। फर्स्ट स्टेज 6 टैबलेट्स सेम, सीयू नंबर कितना होगा, 40, 1 2 3 4 5 6, ओके। 6 लेंगे हम टैबलेट्स, अलग अलग एपरेटस में रखेंगे, UHPLC और यूवी के थ्रू उसकी क्वांटिटी एनालिसिस करेंगे कि ड्रग में एपीआई, ओके, कि कितना डिसॉल्व हुआ है हमारे सॉल्यूशन में, कितना नहीं। उस एपीआई से हमें पता चल जाएगा कि जो डिसोल्यूशन में हमारी टैबलेट डिसॉल्व हुई है उसमें से कितना ड्रग्स जो है एपीआई जो कि सैंपल में डिसॉल्व हुआ है। स्टेज 1 ईच यूनिट डोज नॉट लेस देन क्वांटिटी डिसॉल्व ±5%, मतलब जितना स्पेसिफाइड दिया है उसमें से सिर्फ 5% ही होना चाहिए, नॉट लेस देन, ओके, उसमें कम नहीं होना चाहिए। स्टेज 2 में क्या होगा, पहले 6 टैबलेट्स प्लस नेक्स्ट 6, टोटल 12 टैबलेट हो गई। ऑल 12 यूनिट इक्वल देन क्वांटिटी और मोर देन क्वांटिटी, मतलब जितनी दी है उससे उतनी होनी चाहिए और उसके ज़्यादा होनी चाहिए। नो यूनिट नॉट लेस देन क्वांटिटी 15% से लेस नहीं होना चाहिए। स्टेज 3 में क्या होगा, स्टेज 1 के 6 टैबलेट्स लेंगे, स्टेज 2 के 6 और स्टेज 3 के 12, तो टोटल कितने हो गए, 24 टैबलेट्स हो गए। ऑल 24 यूनिट क्वांटिटी ग्रेटर देन होनी चाहिए, सबके क्वांटिटी के इक्वल, नॉट मोर देन 2 टैबलेट्स, नॉट लेस देन, मतलब उसमें से 2 टैबलेट, नॉट मोर देन 2 टैबलेट्स की कम से कम नॉट लेस देन आनी चाहिए 15% से, और नो यूनिट नॉट लेस देन 25% 25% से कम किसी का नहीं आना चाहिए, ओके। सो ये हो गए डिसोल्यूशन एपरेटस और उसका मैकेनिज्म, 24 टैबलेट्स हो गई। नेक्स्ट हमारी आती है वेट वेरिएशन टेस्ट, 20 टैबलेट्स टू चेक वेट वेरिएशन ऑफ अ ड्रग, रेफरेंस, कंडीशन आईपी, परसेंटेज वेरिएशन और कंडीशन यूएसपी। उसमें आपको याद क्या करना है गाइस, स्टार्टिंग और एंडिंग का याद रखना है।
लेस देन 85 mg आईपी की कंडीशन से और मतलब इसमें क्या होगा, +-10%, +-7.5% और +-5%। ओके, 10% इधर उधर होना चाहिए। अगर हमारे ड्रग का डोज कम है, मतलब 85 mg है आईपी में, तो उसमें से जो वेट वेरिएशन है वो 10% प्लस माइनस होगा तो भी चलेगा। अगर हमारा ड्रग का डोज 85 से 250 mg के बीच में है, तो हमारा ड्रग 7.5% प्लस माइनस होगा तो भी चलेगा। और हमारा ड्रग हायर क्वांटिटी में है 250 mg में, सो मतलब उसका सिर्फ +-5% ही जाना चाहिए, ना कि उससे ज़्यादा। ओके, और मतलब आईपी में और यूएसपी में आपको डिफरेंट क्या याद रखना है, डोज के बारे में। ओके, डोज मतलब आईपी में सबसे कम कितना है 85 और हाईएस्ट कितना है 250, सो उसकी रेंज क्या हो गई 85 to 250। इफ़ लेस देन 85 देन 10%, इफ़ ग्रेटर देन 250 देन इट्स अ 5%। सेम यूएसपी में भी वैसा ही 130 से 324 तक के बीच में जाएगा। इट्स इफ़ इट्स लेस देन 130 देन इट्स अ +-10% इट्स चलेगा, और ग्रेटर देन 324 होगा तो +-5% चलेगा। परसेंटेज ऑफ वेट वेरिएशन, एवरेज वेट इंटू 5/100। एवरेज वेट कितना है 292 है कोई टैबलेट का, इंटू 5/100 कितना आ गया 14.63। ओके, सो ये हो गया परसेंटेज ऑफ वेट वेरिएशन। अपर लिमिट एवरेज वेट प्लस माइनस वेट वेरिएशन, लोअर लिमिट एवरेज वेट माइनस परसेंटेज ऑफ वेट वेरिएशन। सो अपर लिमिट कितना होगा 292.7 प्लस 14.63, इट्स टोटल 307, एंड लोअर लिमिट 292.7 माइनस 14.63, सो 272। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, not more than 2 tablet across the upper limit and not more than 2 tablet across the lower limit। मतलब उनके एक लिमिट्स फिक्स किए हैं, उससे ज़्यादा और कम नहीं होनी चाहिए। इफ़ अपर लिमिट पास लोअर लिमिट पास देन इट्स एक्सलेंट, अपर लिमिट पास बट लोअर लिमिट फेल देन इट्स गुड। सेम आज उल्टा, अपर लिमिट फेल लोअर लिमिट पास देन इट्स गुड, और दोनों भी फेल हो गए तो फेल। ओके।